دہشت گرد ایک ایسے نوجوان کی داستان جس سے بچپن میں جائیداد، عیش و آرام، اپنوں کا پیار، رشتے چھین لیے گئے۔ حالات کے چنگل میں پھنس کر وہ جرائم کی دنیا میں داخل ہوا۔ محب وطن ہوتے ہوئے ملک دشمن قرار دیا گیا۔ انڈیا گیا تو قدم قدم پر موت نے گھیرا، مگر اس نے انڈیا میں انڈیا کی بینڈ بجائے رکھی۔ داستان کی طرف جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ ایک دل ہلا دینے والی داستان، دہشت گرد۔ دہشت، قسط نمبر 23۔ خط پڑھ کر گلوریا بہت خوش ہو گئی، مگر اس کی خوشی عارضی ثابت ہوئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد احمد بخش اپنے 2 گارڈز اور انہی 2 حسین لڑکیوں کے ساتھ وہاں آ گیا۔ اس نے گلوریا کو چلنے کا اشارہ کیا۔ میں نے بھی اس کے ساتھ جانا چاہا تو اس نے مجھے روک دیا اور گلوریا کو لے کر چلا گیا۔ میں بےتابی سے رات گہری ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ تقریباً 1:30 بجے کے قریب روبی آ گئی۔ اس کے ساتھ دینو نامی شخص تھا۔ وہ شکل ہی سے مکار نظر آ رہا تھا۔ میں نے پہلی نظر میں اسے مسترد کر دیا۔ کامران صاحب، روبی نے ہجانی انداز میں کہا، وڈیرا احمد بخش اس وقت موجود نہیں ہے اور کتے بھی ابھی تک نہیں کھولے گئے ہیں۔ میدان بالکل صاف ہے۔ مگر گلوریا کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ گلوریا کو وڈیرا کسی نامعلوم ٹھکانے پر لے گیا ہے۔ آپ جلدی سے نکل چلیں، مگر چلنے سے پہلے ایک کام ضرور کر لیں۔ وڈیرے کی تجوری میں سے تمام بلیک میلنگ کا مواد نکال لیں۔ تجوری میں کروڑوں مالیت کے ہیرے و بے تحاشا بلیک منی ہے۔ دینو نے کہا، ہمارے جوش کے اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ میں نے تو اپنے ساتھ سوٹ کیس بھی لے آیا ہوں۔ میری سمجھ میں آ گیا دینو کو مجھ سے کیا دلچسپی تھی۔ وہ دراصل وڈیرے کی دولت پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ وڈیرے کو زخم پہنچانے کے لیے وہ رقم اور ہیرے ضرور نکالوں گا، مگر اس لالچی دینو کو اس میں سے 1 پائی بھی نہیں دوں گا۔ کیا سوچ رہے ہیں کامران صاحب؟ روبی نے کہا، آپ یہاں سے باہر نکل کر زیادہ بہتر طریقے سے گلوریا کی مدد کر سکتے ہیں۔ چلو۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ برفانی چیتے کی چربی نبا کریم کی بڑی سی ڈبیا میں تھی اور یہ بقول روبی کے وہ ایک آدمی کم از کم 10 دفعہ استعمال کر سکتا تھا۔ فوری طور پر اس کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے میں نے وہ ڈبیا پولی تھین میں لپیٹ کر احتیاط سے جیکٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لی۔ ہم تینوں پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہوئے احمد بخش کے بیڈ روم میں پہنچے۔ وہیں بڑی سی ایک تصویر کے پیچھے تجوری تھی۔ روبی نے تصویر کے اوپر لگا بلب روشن کر دیا اور بولی، یہ بلب روشن کرنے سے الارم نکارا ہو جاتا ہے۔ پھر میں نے تصویر ہٹائی اور تجوری کا تالا کھولنے میں مصروف ہو گیا۔ آدھ گھنٹے کی جان توڑ کوشش کے بعد تجوری کھل گئی۔ اس کے اندر رکھے ہوئے بیش قیمت ہیرے اور کروڑوں روپے کے کرنسی نوٹ دیکھ کر میری آنکھیں چندیا گئی۔ میں سمجھ گیا کہ دینو کنگ سائز سوٹ کیس کیوں لایا تھا۔ وہ رقم اتنی تھی کہ کسی چھوٹے موٹے سوٹ کیس میں آ ہی نہیں سکتی تھی۔ اس میں ملکی کرنسی کم اور امریکن ڈالر زیادہ تھے۔ میں ابھی تجوری کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ مجھے گردن پر کسی چیز کا دباؤ محسوس ہوا۔ ساتھ ہی دینو کی آواز آئی، بس مسٹر کامران، تمہارا کام ختم ہو گیا۔ اب خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف جاؤ، ورنہ بے دریغ تمہیں گولی مار دوں گا۔ دراصل مجھے وڈیرے کی زبانی ہی معلوم ہوا تھا کہ تم ہر قسم کے تالے کھولنے کے ماہر ہو۔ میں نے سوچا کیوں نہ تمہارے ذریعے قسمت آزما لوں۔ اس لیے میں نے آج کتوں کے رکھوالوں کو بھی خوب شراب پلا کر مدہوش کر دیا، ورنہ میں خود بھی یہاں سے نکلنے کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کتے اپنے رکھوالوں کے علاوہ کسی کو پہچانتے ہی نہیں۔ پھر وہ ریوالور کی نال میری گردن پر چبو کر بولا، چلو نکلو یہاں سے۔ میرا رخ ابھی تک تجوری کی طرف تھا۔ میں آہستہ آہستہ گھوما تو دینو بھی میرے ساتھ گھوم گیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھ سے غافل نہیں ہوا تھا۔ روبی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ اس نے خشک کونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، دینو تم معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ کیسا معاہدہ؟ دینو ہنس کر بولا،
चोरी और डकैती में इस किस्म के मुआहदे होते रहते हैं और टूटते रहते हैं। फिर वो तंजिया लहजे में बोला, और तुम क्या समझती थी कि मैं तुम्हारे इस हसीन चौकटे पर मर मिटा हूँ? मेरे पास दौलत होगी तो मैं ऐसी 20 लड़कियाँ ख़रीद लूँगा। 20 लड़कियाँ? मैंने हैरत से कहा। मैं उसे बातों में लगाकर कोई मौका हासिल करना चाहता था। अच्छा बकवास बंद करो और आगे चलो, उसने पीछे से मुझे धकेला। मैं जानबूझकर थोड़ा सा लड़खड़ा गया और बिजली की सी तेज़ी से नीचे बैठ गया। फिर वो जब तक संभलता मैंने हाथ बढ़ाकर दोनों हाथों से उसकी दोनों कलाइयाँ पकड़ लीं। उसने घुटना मेरी पीठ में मारने की कोशिश की, मगर मैंने सर उसके पीठ में अड़सकर उसे आगे की तरफ ज़ोरदार झटका दिया और वो मेरे ऊपर से होता हुआ दब से फर्श पर आ गिरा। कलाई मुड़ने से उसका रिवाल्वर हाथ से निकल गया था। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि दीनू लड़ने बढ़ने में ज़्यादा ताक नहीं, मगर उसके जिस्म में ताकत बेपनाह थी। मैं झपट के उसके सीने पर सवार हो गया और घुटना उसकी गर्दन पर रख दिया। अब बताओ कितनी लड़कियां खरीदोगे? मैंने उसकी गर्दन पर घुटने का दबाव बढ़ाते हुए कहा। मुझे माफ़ कर दो कामरान, वो घुटी घटी आवाज़ में बोला। मैं लालच में आ गया था। मैंने उसकी कनपटी पर हल्का सा हाथ मारा तो उसने हाथ पांव ढीले छोड़ दिए। मैं चाहता तो उसे ख़त्म कर सकता था, मगर मैं खामखा किसी की जान लेने का कायल नहीं था। उसे छोड़ के मैंने सूटकेस खोला और तिजोरी की रकम और हीरे तेज़ी से सूटकेस में मुंतकिल करने लगा। तिजोरी में एक बड़ी डायरी और कुछ फाइलें भी थी। मैंने वो भी सूटकेस में मुंतकिल कर ली। 10 मिनट से भी कम अरसे में तिजोरी में रखी हुई एक एक चीज़ सूटकेस में मुंतकिल हो गई। तिजोरी बंद होने के बाद मैंने सूटकेस के नंबरों वाले लॉक का कम्बिनेशन सेट किया और सूटकेस बंद कर दिया। रूबी इस दौरान में होंकों की तरह मुझे देखे जा रही थी। कभी सूटकेस को चलते चलते मैंने दीनू की कनपटी पर हल्का सा एक हाथ और मार दिया ताकि वो जल्दी होश में ना आ सके। फिर मैं और रूबी बाहर निकल आए। तुम्हारा क्या अंदाज़ा है रूबी, कुत्ते क्या वाकई नहीं खुले हैं? हाँ, ये बात दीनू ने झूठ नहीं कही। कुत्ते अभी तक नहीं खोले गए हैं। फिर वो कुछ सोचकर बोली, मगर अब गेट से बाहर निकलना मुश्किल होगा, क्योंकि गेट पर भी 2 मुहाफ़िज़ मौजूद होंगे। देखा जाएगा, मैंने शाने उचका कर कहा। फिर मुझे दीनू के रिवाल्वर का ख्याल आया। अफरा तफरी में वो रिवाल्वर मैंने वहीं छोड़ दिया था। मैंने रूबी को वहीं छोड़ा और लपक कर रिवाल्वर उठा लाया। मुझे इस वक्त हथियार की बहुत ज़रूरत थी। फिर मैं और रूबी बहुत एहतियात से सीढ़ियों की तरफ बढ़े। रूबी की दी हुई चर्बी मैंने इस्तेमाल नहीं की। मैं सीढ़ियाँ उतरकर नीचे पहुंचा तो ठटक कर रुक गया। कोई शख्स बरामदे के सतून से टेक लगाए बैठा था। जीने की जानब उसकी पुश्त थी। उसके शाने से राइफल लटक रही थी। मैं समझ गया ये अहमद बख्श का कोई गार्ड है। बरामदे में तेज़ रोशनी का बल्ब जल रहा था। अगर वो ज़रा सा तिरछा होता तो बहुत आसानी से हमें देख लेता। मैंने रूबी को वहीं छोड़ा और ख़ुद बिल्ली की तरह दबे पाँव चलता हुआ गार्ड की पुश्त पर पहुंच गया। फिर मैंने अचानक उस पर छलांग लगाई और उसे दबोच लिया। मज़ामत करने के बजाय वो फर्श पर एक तरफ लुढ़क गया। मैंने हैरत से उसे देखा। उसका सांस चल रहा था, मगर वो बेहोश में नहीं था। गोया दीनू ने वहाँ से निकलने का पक्का इंतज़ाम कर लिया था। मैं पलट के जीने की तरफ गया और सूटकेस उठा के रूबी को चलने का इशारा किया। फिर हम बगैर किसी मज़ाहमत के गेट के पास पहुँच गए। गेट के सामने पुख्ता थी जो पोर्च तक चली गई थी। रईश के दोनों किनारों पर डमडम की बाड़ भी वसी अर्ज लान था। मैंने इसी लान में कुत्तों को दौड़ते हुए देखा था। कुत्ते शायद कोठी के दूसरे हिस्से में थे, क्योंकि इनके भौंकने और घुराटों की आवाज़ खासी मध्यम थी। अब सबसे बड़ा मसला गेट में मौजूद मुहाफ़िज़ों से निपटने का था। मैंने रूबी से पूछा, तुम रिवाल्वर चला सकती हो? उसने इनकार में सर हिला दिया। गोया अब दोनों मुहाफ़िज़ों से भी मुझी को निपटना था। मैंने रूबी से कहा, तुम चौकीदारों को आवाज़ देकर यहाँ बुलाओ। इन दोनों में से एक यहाँ ज़रूर आएगा, या मुमकिन है दोनों ही आ जाए। फिर मैं डमडम की बाड़ के साथ दबक गया। रूबी ने घबराए हुए अंदाज में, चौकीदार बाबा कोई है यहाँ? गेट के साथ ही चौकीदार का कमरा था। फ़ौरन ही दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। फिर किसी की कुरख्त आवाज़ सुनाई दी। कौन है? मैं रूबी हूँ, ज़रा इधर आओ।
बीबी जी आप, उसने हैरत से कहा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? फिर मुझे पुख्ता फर्श पर भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने सांस रोक लिया। आने वाला बाड़ के दरमियान बने हुए रास्ते से लान में आ गया। अचानक ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। उसने हाथों में दबी हुई राइफल का रुख मेरी तरफ किया, मगर उसे देर हो चुकी थी। मैं बिजली की सी फुर्ती से उछला, मेरी किक उसकी पेशानी पर पड़ी और वह हल्की सी आवाज़ निकाल के ढेर हो गया। उसके गिरते ही मैं बरक रफ्तारी से मुहाफ़िज़ों वाले कमरे की तरफ बढ़ा। ऐन उसी वक्त दूसरा मुहाफ़िज़ कमरे के दरवाजे पर नमूदार हुआ। मैंने झपट कर उसकी गर्दन दबोच ली। उसने अपनी कोहनी पूरी कुव्वत से मेरे पसलियों पर मारी। लम्हे भर को मेरा सांस रुक गया और उसकी गर्दन पे मेरी गिरफ्त ढीली पड़ गई। वो तड़प के मुड़ा और मेरे चेहरे पर कराटे का खौफनाक वार करना चाहा। मैंने बमुश्किल तमाम वार से खुद को बचाया। उसने दूसरी दफ़ा मुझे किक मारना चाहिए, मगर मैंने उसकी टांग पकड़ के घसीट ली। वो झटके से ज़मीन पर गिरा तो मैंने उसकी खोपड़ी पर ज़ोरदार लात रसीद कर दी। फिर मैं हाँफता हुआ उससे अलहदा हो गया। मैं जानता था कि अब वो कम अज़ कम 2 घंटे तक होश में नहीं आ सकेगा। कमरे में एक कील पर चाबियां लटक रही थी। मैंने चाबियों का गुच्छा लेकर गेट के ताले पर चाबी आजमाना शुरू कर दी। दूसरी ही कोशिश में ताला खुल गया। मैंने रूबी को वहाँ से निकलने का इशारा किया, फिर खुद भी सूटकेस उठाकर बाहर निकल आया और वो गेट दोबारा भीड़ दिया। फिर हम एक तरफ रवाना हो गए। मुझे ग्लोरिया की फिक्र थी, अहमद बख्श न जाने उसे कहाँ ले गया था। चलते चलते मैंने कलाई की घड़ी में वक्त देखा कि 3:30 बज रहे थे। मेरी समझ में नहीं था कि अब मैं कहाँ जाऊँ। मैंने रूबी से पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? चलो मैं तुम्हें छोड़ दूँ। वो एकदम अफसरदा हो गई और बोली, अगर मेरा कोई घर होता वडेरे अहमद बख्श की गुलामी करती, मगर तुमने तो बताया कि वडेरा तुम्हें ब्लैकमेल करता था। मैंने कहा, फिर मुझे खुद ही अपनी हमाकत अमेज़ सवाल का एहसास हुआ। मैंने खजालत अमेज़ लहजे में कहा, मेरा मतलब है उसने कहाँ से लाया था, क्यों ब्लैकमेल कर रहा था? ये एक लंबी कहानी है, बाद में किसी वक्त सुनाऊंगी। उसने तवील सांस लेकर कहा, फ़िलहाल मुझे अपनी एक सहेली का ख्याल आया है। हमें फौरी तौर पर वहाँ पनाह मिल सकती है। तुम्हारी सहेली कहाँ रहती है? मैंने पूछा। वो नाज़माबाद के इलाके में रहती है, रूबी ने बताया। चलो फिर मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। फिर मैंने रुक कर कहा, तुम्हारी सहेली के घर का इल्म वडेरे को है? नहीं, रूबी ने जवाब दिया, इसके बारे में उसका कोई आदमी नहीं जानता। फिर वो कुछ सोच कर बोली, क्या आप वहाँ नहीं रहेंगे? नहीं रूबी, मैंने जवाब दिया, फ़िलहाल हम दोनों का एक साथ रहना ठीक नहीं, वरना दोनों मारे जाएंगे। जब तक मैदान साफ ना हो जाए तुम वहीं रहना, फिर हम मिलते हैं। ईब तुम्हें किसी रिश्तेदार के घर पहुंचा दूंगा। मैं बोलते बोलते रुका, फिर ज़रा तवक्कुफ़ के बाद बोला, तुम्हारी सहेली क्या करती है? उसके साथ और कौन कौन रहता है? वो किसी स्कूल में पढ़ाती है, वो बिल्कुल तनहा रहती है। उसके शौहर मर्चेंट नेवी में इंजीनियर हैं। वो बाज़ औक़ात साल भर जहाद पर रहते हैं। उसके और उनके बच्चे मैंने उसे ख़रीदा। वो लोग अभी तक औलाद की नेमत से महरूम हैं। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इस वक्त यह भी ख़तरा था कि रास्ते में पुलिस की मोबाइल वैन मिल गई तो सब किए किराए पर पानी फिर जाएगा। इस दौरान में हम पुल अबूर करके शारा फैसल पे आ गए थे। अचानक सड़क गाड़ी के हेडलैम्प से रोशन हो गई। वहाँ आसपास कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ छुपा जा सके। मैं अगर छुपने की कोशिश भी करता तो गाड़ी वाले मुझे देख लेते और ख्वाब ख्वाब में मुश्तबा हो जाता। मैं दिल कड़ा करके चलता रहा और मैं कर भी क्या सकता था। गाड़ी मेरे पास से गुजरी, मगर फ़ौरन ही उसके ब्रेक चीख उठे। वो जदीद मॉडल की टोयोटा करोला थी। उसकी टेल लाइट में सुर्ख रोशनी, गाड़ी का नाम साफ नज़र आ रहा था। फिर सड़क पे इलेक्ट्रॉनिक पोल की रोशनी भी थी। अचानक गाड़ी रिवर्स होने लगी, फिर हमारे पास आकर रुक गई। मुझे ये इत्मीनान था कि गाड़ी कम अज़ कम पुलिस वाले नहीं हैं। अचानक गाड़ी का दरवाज़ा खुला और हैरत ज़्यादा आवाज़ सुनाई दी, कामरान साईं आप? मैंने चौंक कर बोलने वाले को देखा। वो मेरे मकतूल दोस्त नासर का गार्ड अली मुराद था। वही अली मुराद जिसकी गाड़ी में हम बास की बीवी को लेकर फ़रार हुए थे।
اور ہائی وے پر اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ اتر کر میرے سامنے آ گیا۔ سائیں آپ تو گرفتار ہو گئے تھے۔ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ گرفتار تو ہوا تھا، میں نے مسکرا کر کہا، مگر پھر جیل سے فرار بھی ہو گیا تھا۔ آؤ سائیں گاڑی میں بیٹھو، میں خادم ہوں آپ کا۔ پھر اس نے غور سے روبی کو دیکھا، پھر بولا، مگر یہ وہ عورت تو نہیں جو آپ کے ساتھ تھی؟ ہاں علی مراد، یہ وہ عورت نہیں۔ علی مراد نے گاڑی کی ڈگی کھول کر سوٹ کیس رکھا، پھر روبی کے لیے پچھلا دروازہ کھول دیا۔ میں اس کے ساتھ فرنٹ پر سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ابھی بتاؤ سائیں، کدھر چلوں؟ اس نے سیٹ بیلٹ لگاتے ہوئے پوچھا۔ پہلے ناظم آباد چلو، میں نے انہیں ناظم آباد چھوڑنا ہے۔ اس نے جھٹکے سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ میں نے اس سے پوچھا، تم اس وقت کہاں سے آ رہے ہو؟ میں بڑے سائیں کو ایئرپورٹ چھوڑ کر آ رہا ہوں، علی مراد نے جواب دیا۔ وہ علاج کے لیے امریکہ جا رہے ہیں۔ پھر وہ مجھ سے بولا، سائیں آپ سناؤ، پولیس کے چنگل سے کیسے نکلے؟ یہ قصہ ذرا طویل ہے، میں نے ہنس کر کہا، پھر کبھی فرصت میں سناؤں گا۔ بس یہ سمجھ لو کہ میں ناصر کے قاتلوں سے انتقام لے کر رہوں گا۔ انہی لوگوں نے مجھے گرفتار بھی کروایا تھا۔